بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے ماہر قرآنک انسٹیٹیوٹ۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے، شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ، تاکہ دوسروں کو بھی نفع ہو اور گھنٹے کے نشان پر انگلی دبائیں۔ آپ کی مہربانی، جزاکم اللہ فی الدارین۔ آج کا نسخہ جو ہے اس کا نام ہے بڑھاپے میں سدا بہار جوانی۔ بڑھاپے میں سدا بہار جوانی، اور یہ نسخہ شوگر کے مریضوں کے لیے میں نے ترتیب دیا ہے۔ شوگر کے مریض اکثر بیچارے جائز تلذذ سے محروم رہتے ہیں، اور گھر میں کچھ بے چینی کی کیفیت ہو جاتی ہے، بعض دفعہ لڑائی جھگڑا بھی درمیان میں کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ شوگر کے علاوہ جو دوسرے جن کو شوگر نہیں ہے، اگر وہ بھی یہ بنا کے استعمال کرے تو ان کے لیے جو ہے نا کہتے ہیں سونے پہ سہاگا ہے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن شوگر کے مریضوں کے لیے سب سے بہترین نسخہ مردانہ کمزوری، جسے ہم قوت باہ سے تعبیر کرتے ہیں، یہ کوئی مستقل بیماری نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اعضاء رئیسہ سے ہے۔ اعضاء رئیسہ دماغ، دل، جگر اور گردے اور اعصاب۔ دماغ اور اعصاب کو کچھ حکماء ایک بھی کہتے ہیں۔ جب ان میں کوئی ایک کمزور ہو جائے تو اس کا اثر باقی جو اعضاء رئیسہ ہیں ان کے اوپر بھی پڑتا ہے، تو اس سے پھر جو ہے نا قوت باہ آدمی کی کمزور ہو جاتی ہے۔ جن حضرات نے نوجوانی میں اس کو وظیفہ بنایا ہوا ہے، ان کے لیے بھی ہے، یعنی جو رات دن لگے رہتے ہیں، اور کچھ وہ حضرات جو بچپن میں غلط کاریاں کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ ایسا مجرب اور مفید نسخہ ہے کہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز 2 ہفتوں کے اندر آپ کو جسم خود بتائے گا کہ آپ مجھے کچھ کھلا رہے ہیں، آپ مجھے کچھ دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ پرہیز آپ کو پتہ ہے کہ شوگر کا مریض جو ہے اس کے لیے پرہیز کیا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے سب کو۔ اب تو ہر 10واں بندہ شوگر کا مریض ہے، ہر 10واں بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ شوگر کے قوت باہ جو ہے مردان کی جو کمزوری ہے اس کو تو ترقی دے گی انشاءاللہ، اس کے لیے مفید ہے۔ شوگر کو بھی کنٹرول کرے گی یہ دوائی، ہماری نسخہ ہمارا شوگر کو بھی کنٹرول کرے گا، اور ہائی بلڈ پریشر کی بھی اس میں رعایت رکھی ہے انشاءاللہ العزیز، وہ ان کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کرے کہ تمام بنانے والوں کو لیے یہ نسخہ مفید ثابت ہو، تو دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ تو اب چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ میں ایک جڑی بوٹی کا نام لے رہا ہوں اور آپ اس کو نقل کرتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الشافی، تخم اسپند، جس کو ہرمل بھی کہتے ہیں، 10 گرام، یعنی 10 گرام کو چھوڑ دو، 1 تولہ، 1 تولہ لونگ، 1 تولہ دار چینی، 1 تولہ زعفران، کشمیری ہو، نیپالی ہو، ایرانی ہو، لیکن ہو خالص، کسی معتمد پنسار سے آپ یہ لے لیں،
अगर ख़ुद आपको ये मालूम न हो सके कि ये असली है नकली है तो किसी हकीम को दिखा लो। महल्ले में हुक्मा काफ़ी हैं, दोस्त अहबाब भी होते हैं, उनको पता होता है कि ये असली है या नकली है। नेपाल का हो, ईरान का हो, साउथ अफ्रीका से भी आता है, लेकिन सबसे बेहतर कश्मीरी है। अगर वो मिल जाए मज़ा आएगा इंशाल्लाह। 1 तोला ज़ाफ़रान कश्मीरी और 1 तोला रेग माही। रेग माही एक छिपकली नुमा एक चीज़ है जो झंग और हमारे इलाकों में काफ़ी पाई जाती है। उसको लोग पकड़ते हैं तो उससे आंतें निकाल कर, आलाइश निकाल कर उसको सुखाते हैं। पंसार के पास मिल जाएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। मुस्तगी रूमी, जिसको आम हुक्मा मस्तगी कहते हैं, और हब को हुब कहते हैं, और इमसाक को अमसाक कहते हैं। तो अर्क़ुन नस्सा को अर्क़ुन निसा, हालांकि अर्क़ कहते हैं पसीने को और निसा औरत, औरत का पसीना। ये कौन सी बीमारी है? असल में ये है कि पुराने ज़माने के हुक्मा जो हैं वो अरबी जानते थे। आजकल के दौर के हुक्मा जो हैं इनको कुछ नहीं पता। माजून को मजऊन, ये मैंने ख़ुद सुना है बहुत बड़े हकीम से। तो मुस्तगी मीम के ऊपर पेश है जी, मुस्तगी वा के साथ, रूमी 1 तोला। सालब पंजा यूँ होता है जी, जैसे यूँ चिड़ी का जो है ना पैर, उस तरह, ये 1 तोला। सालब मिस्री, ये ज़रा सख्त होती है, 1 तोला। मूसली सफ़ेद 1 तोला। असगंध नागोरी 1 तोला। और बहमन सुर्ख और बहमन सफ़ेद दोनों अलग अलग 1-1 तोला। बहमन सुर्ख 1 तोला, बहमन सफ़ेद 1 तोला, तौदरी सफ़ेद 1 तोला, तौदरी सुर्ख 1 तोला। और जायफल 1 तोला। जायफल आप एहतियातन 2 तोले ले लें, क्योंकि ऊपर का जो खोल जो है छिलका, उसको उतार कर जो अंदर गूदा है उसको आपने इस्तेमाल में लाना है। और शकाकल मिस्री, ये भी 1 तोला। ये तमाम चीज़ें आप लेके तो घर में ख़ुद आके ना, हर घर में ग्राइंडर होता है आजकल माशाल्लाह, उसके ऊपर इसका पाउडर बना लें। हाँ, कुश्ते चांदी, मेरा ये असल चीज़, कुश्ते चांदी 5 ग्राम अगर लाहौर में लेना हो तो अशरफ लेबार्ट्री का या सुलेमानिया दवाखाना, जिसके एक शाख गज़नी स्ट्रीट उर्दू बाज़ार में है और दूसरी शाख खान बाबा होटल जुबुर्जी के बैक साइड पे है। कुश्ते चांदी आब अदरक वाला 5 ग्राम। और मरवारीद, जिसको सुच्ची मोती कहते हैं, ये आपने लेने हैं 6 माशे। घर आकर मूसली अपना मुस्तगी, ज़ाफ़रान और मरवारीद, इनको अलग कर दें और बाकी तमाम चीज़ों का आप पाउडर बना लें। खूब छान कर, कपड़ छान हो, जितना ज़्यादा यानी आप इसको सफ़ूफ यानी बारीक करेंगे तो इतना ही ये फ़ायदेमंद होगा जी। अब जो कुश्ता चांदी है वो इस सफ़ूफ में मिला दें, और ज़ाफ़रान जो है वो खरल में डालकर, जिसे दौरी कहते हैं, आध प्याला आर्के गुलाब, वो थोड़ा डालते जाएं और उसको खरल करते जाएं। जब बिल्कुल सूख जाए तो ज़रा धूप में रख दे ताकि खूब खुश्क हो जाए। उसके बाद खूब उसको अलग करके और ज़रा धूप में 1 घंटे फिर रख लो, तो उसके बाद इसको भी साथ उसी सफ़ूफ में मिला दो। मरवारी जो है, इसके ऊपर 1 कप आपने अर्के गुलाब जो है उसको आपने इसके ऊपर सर्व करना है। मरवारी को डाल दीजिए, थोड़ा सा डाल देना, पहले वैसे कूट दो,
उसके बाद एक एक चम्मच डालते जाएं और साथ साथ खड़ा करते जाएं। 2-3 दिन में ये होगा। 2-3 दिन जो है, अगर जायज़ तलज़्ज़ुज़ से आप महरूम हैं और वो आपको मिल रही है तो ये कोई सौदा महंगा तो नहीं है। उसके बाद जो है जी, इसको भी बिल्कुल सफ़ू बना के एक पैला अर्क गुलाब इसके ऊपर आपने खुश करना है। तो जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए, ज़रा धूप में रख कर ताकि नमी न रहे, और ये भी उस सफ़ूफ़ में, और उस सफ़ूफ़ को फिर खूब मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद पंसार से या मेडिकल स्टोर से खाली कैप्सूल मिलते हैं, 100 का भी पैकेट, 200 का पैकेट, इन 100 अदद 200 अदद। तो दरमियाने साइज़ का कैप्सूल लेकर और उसको आप भर दें। लेकिन कैप्सूल भरने का तरीका मैं आपको समझाता, लेकिन अब मेरे पास वो कैप्सूल है नहीं। यानी कैप्सूल यूँ नहीं भरने, यूँ, बल्कि उसका खोल उतार के उसको यूँ करना है, यूँ खूब, इस तरह ये खूब भर जाएगा। उसके खोल डाल दो। इस पर दूसरा, जितने कैप्सूल बन जाएँ महफूज कर लो। सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोते वक़्त, नाश्ते के तकरीबन 10-15 मिनट बाद, और रात का खाना जब आप खाएं और सोएं तो उस वक़्त 1.5 पाव दूध के साथ आपने 1 कैप्सूल खाना है। 1 कैप्सूल, 2 नहीं, 1, और 1 रात को खाना है जी। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुझे 100% यकीन है ये मुस्तनद नुस्खा है शुगर के मरीज़ों के लिए। तो पता यानी कि यकीनन आपको इससे इफ़ाक़ा होगा इंशाअल्लाह, लेकिन चीज़ें खालिस हों। ज़ाफ़रान के बारे में ज़रा किसी अच्छे हकीम से मशवरा करके थोड़ा सा दिखा देना कि भाई ये ज़रा बताएं कि ये खालिस है या इसमें कुछ मिलावट है। क्योंकि आजकल जो है ना जी, मकई के जो है ना, मकई उसकी जो होती छल्ली, उसके ऊपर जो ऊपर होता है वो बाल जो होते हैं, उसको खुश करके, और यार लोग उसको जर्दे के रंग में 1-2 दिन रख के वो आपको ज़ाफ़रान बना के देंगे। ज़ाफ़रान कश्मीरी हो या नेपाली हो या ईरानी हो या साउथ अफ्रीका के का हो, लेकिन हो खालिस। मरवारीद आम मिलते हैं खालिस। बाकी चीज़ें जो हैं वो आम पंसार के पास मिलती है, उसमें कोई दो नंबरी नहीं कर सकता। मुस्तकी रूमी रह गई यहाँ। मुस्तकी रूमी चूँकि जब आप उसको अलग कूटेंगे, सिर्फ सफ़ू के साथ अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो इसके बन जाएंगे इतने दिन ना, और बंटे बन जाएंगे, जैसे वो गोल गोल चिपक जाते हैं। इसलिए इसका बेहतर तरीका ये है कि वो जो सफ़ूफ़ आपने पहले बनाया हुआ है उसमें से 2 चम्मच सफ़ूफ़ लेके और आहिस्ता आहिस्ता इसको मोहब्बत के साथ और नरमी के साथ इसको खरल करना है। फिर 1 चम्मच और डाल दो, फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इसमें नमी होती है, ज़र्द रंग की होती है। उसके बाद इसको भी मिला लीजिए। अगर किसी के पास खालिस शहद हो तो 2 चंद, यानी जितना यह नुस्खा है, जितने तोले हैं उसका डबल, लेकिन बशर्ते के शहद खालिस हो। लोग जो आजकल बाज़ारों में बनाते हैं ये ना, खालिस शहद छोटा हो बड़ा हो, दुगना मिला के इसका आप माजून भी बना सकते हैं। और माजून बनाने के बाद छोटा चम्मच, टीस्पून जिसे कहते हैं, वो आधा आप उसी तरह नाश्ते के बाद और रात सोते वक़्त। अल्लाह पाक जितने भी हमारे भाई जायज़ तलज़्ज़ुज़ से महरूम हैं, अल्लाह पाक सबको इस नुस्खा से उनको शिफा अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।